I got it. See. Question number 1. It is single correct options. Question number 1. Have we done everything previously also? Complete हो चुका है पूरा? ये कुछ बाकी है इसमें? ठीक है. Fine. I'll be starting with single correct options. In a clock, what is the time period of meeting of minute hand and seconds hand? Okay. So it's very, very important to understand that there is a clock. And suppose the minute hand is also here. And suppose this is the minute hand and this is the seconds hand. बराबर है? Hello. Initially, they are at the same place. Now they are telling you at what moment will they meet? What moment will they meet? So can I say, suppose who will go fast? Can anyone tell me out of seconds hand and minute hand who will go fast? Seconds hand is going to go fast. And minute hand, okay, will go slow. Suppose after certain time t, minute hand comes here. ध्यान देना. Okay. At a certain time t, this is at time 0. ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सम है. Minute hand is tracing this much angle. बराबर है? इसको मैं बोलूंगा थीटा मिनट. What do you think? How much seconds hand will complete? आपने कहा कि seconds hand is going to go fast. So can I say before meeting or at the time of meeting, seconds hand will complete one more oscillation than the minute hand? Hello? Are you understanding? Seconds hand का हुआ क्या है मालूम है? ये seconds hand पूरा घूम कर, suppose seconds hand फिर से यहाँ पर आ गया. तो seconds hand आया का किधर से है? Seconds hand पूरा घूमा है ऐसे और इतना आया. This is the theta second. बोलो करेक्ट है क्या? हेलो सो भाई, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना. देखो, मैं और एक चीज आपको बताता हूँ. सपोज एक रेसिंग ट्रैक है और देर आर टू पर्सन्स हु आर रेसिंग. वन इज फास्ट एंड अदर इज स्लो. ये लेवल पर दोनों मीट कर रहे हैं स्टार्ट में. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके. अब मैं कहूँ व्हेन विल दे मीट अगेन, तो सपोज स्लो वाला इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेस कर रहा है. ओके. स्लो इधर आ गया टाइम टी पर. दिस इज एट टाइम 0. बराबर. This is at time t. Can anyone tell me the fast person will cover how much before meeting him again? पूरा एक oscillation. हेलो, क्या समझ में आ रही है बात? हेलो. यस सर. हाँ, ये important concept है हाँ, एकदम. Can I say this is the theta traced by slow? And ये पूरा जो theta traced है वो theta fast है. हाँ. Can anyone tell me how much is the difference in the theta of the seconds hand minus theta of the minute hand? जरा देखो ये क्वेश्चन में. ये जो, हाँ देखो ना, थीटा ऑफ सेकेंड पूरा एक चक्कर है प्लस दिस मच है, माइनस थीटा ऑफ मिनट इज 2 पाई रेडियंस. डू यू अग्री? ये कैच है इसका. हेलो हेलो. यस सर. ये इसका कैच है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके. जैसे हम रिलेटिव मोशन करते थे, सिंस दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट विल बी सबट्रैक्शन एंड इट विल बिकम इक्वल टू 2 पाई. थीटा का फॉर्मूला याद है? ओमेगा टी. हेलो, याद है ना? ओमेगा इज थीटा बाय टी, सो इट विल बिकम ओमेगा सेकंड्स इनटू टी माइनस ओमेगा मिनट इनटू टी
is equal to 2 pi. ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 pi by capital T which is time period into time of meeting minus 2 pi by capital T minute into T is equal to 2 pi. So can I cancel the 2 pi? Yes or no sir? यहाँ से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई? T will become 1 upon T seconds minus 1 upon T minute is equal to 1. So T minute minus T seconds upon T second T minute is equal to 1. So time period of meeting is equal to T second T minute upon T minute minus T seconds. हेलो हेलो यार Yes, बोलो, sir. ये फॉर्मूला बना है. अभी आपके पास दो तरीके हैं, या तो पूरा डिराइव करो या तो यू कैन लर्न बाय हार्ट इन द एग्जामिनेशन व्हेनेवर द सम कम्स. इसको बोलते हैं रिलेटिव टाइम इन दिस थिंग व्हेन दे आर मीटिंग टाइम ऑफ मीटिंग, रिलेटिव टाइम नहीं, टाइम ऑफ मीटिंग. General formula, can I say time of meeting is T1 T2 upon T1 minus T2? Yes or no? Hello यार, yes or no? So T will become, what is time period? चलो बोलो, what is time period of seconds hand? Time period of seconds hand. Come on fast man. 60 seconds. Okay. And can I call this as 1 minute into 60 minutes on 60 minus 1? 60 by 59. Okay. Hello. Do you agree? Do you agree So, with but me? that's Yes. in minutes. हाँ तो मिनट ऊपर नीचे कैंसिल हो गया ना बेटा. हाँ ये मिनट में आ जाएगा. सॉरी, ये मिनट में आ जाएगा. ये मिनट में आ गया ना, ये मिनट हो गया ऊपर मिनट स्क्वायर और ये नीचे मिनट हो गया. तो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा? अभी ये मिनट में आ गया. सॉरी, ये 60 और लिख देंगे. 3600 बाय 59 सेकेंड. सॉरी, बराबर है ना? हेलो So, ठीक है. सो दैट इज ओके. अब हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. इन टोटली देयर आर 33 क्वेश्चंस वो आज कंप्लीट करेंगे. ओके. I'll come to question number 4. Okay, ध्यान देना. A particle is given an initial speed u in a smooth spherical shell so that it just able to complete the circle. ये तो easy है. Acceleration of the particle when the velocity is vertical. Can anyone tell me velocity is vertical मतलब particle इधर है? Hello? Yes or no? yes, sir. अच्छा, यहाँ पर कह रहा है it is just being able to complete the circle. Just being able to complete the circle का क्या मतलब है? How much is the initial velocity at the bottommost point? Root 5 RG. तो यहाँ पर कितना होगा? रूट 3rg बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 3rg होगा. The acceleration of the particle when the particle is vertical. अच्छा, यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है. एक एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल होता है, दैट इज v स्क्वायर बाय r. मतलब v स्क्वायर तो ये है ना हमारे पास, बाय r करेंगे तो ये हो जाएगा 3g. डू यू अग्री विथ मी? अरे भाई, डू यू अग्री विथ मी? ये एक्सेलरेशन sir. सेंट्रीपिटल है. जो दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है अभी फिलहाल? G. Gravity. This is vertical. So can I say the net acceleration will be this way? So net acceleration will be under root of 3g का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर. तो रूट 10g हो गया ना आंसर. हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये ठीक है. They are asking you the net acceleration which we have done. So this is done in vertical circular motion last time. It's the same thing. Okay. Question number 6 पर आते हैं.
कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको, जस्ट डू इट. A point moves along a circle of radius 20 centimeter with constant tangential acceleration 5 centimeter per second square. अच्छा सब सेंटीमीटर में ही है तो इसको 20 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ मैं अभी फिलहाल. How much time is needed? तो टाइम निकालना है. After beginning of for the normal acceleration to be equal to tangential acceleration. Normal मतलब Centripetal acceleration. radial acceleration. Okay. Yeah. So यहाँ पर he is telling you that the centripetal acceleration should become equal to tangential acceleration. ये टाइम निकालो जब ये चीज हो रही है. अच्छा इसका मतलब ये जो बॉडी है, ये जो पॉइंट है, जो पार्टिकल है, वो यूसीएम में है क्या नॉन यूसीएम में? कम ऑन फास्ट, नॉन यूसीएम. बिकॉज दोनों एक्सेलरेशन है ना. इट इज नॉन यूसीएम प्लीज. अच्छा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? p स्क्वायर बाय r. हेलो, यस और नो? यस सर. या तो ओमेगा स्क्वायर r या तो v स्क्वायर बाय r या तो ओमेगा v. एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमको पता ही है ये चीज है. अब सब लोग इधर मेरी बात सुनेंगे. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. कैन आई से सिंस इट इज अ नॉन यूसीएम, ध्यान देना ये v क्या हो जाएगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v? अच्छा मैंने आपको बताया था जब नॉन यूसीएम होता है तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगते हैं. व्हिच काइनेमेटिकल इक्वेशन विल बी अप्लाइड? कैन आई से ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t. डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? यस और नो? यस सर. ये लगा सकता है. अच्छा ओमेगा को लिख सकता हूँ v बाय r. अल्फा को लिख सकते हैं at बाय r इंटू t. हेलो हाँ ना बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रूव होने वाली है. तो r r r कैंसिल हो गया. देखो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन बन गया हमारा लीनियर मोशन वाला. हेलो हेलो, यस और नो? यस सर. सिंस इट वाज एन एंगुलर मोशन था, बट उसका रिलेशन जब मैंने लीनियर मोशन से निकाला तो लीनियर मोशन का ही इक्वेशन आ गया. मतलब v की जगह क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ u प्लस at, एंड दिस a विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली. तो ये जो v है ना, ये जो v है, इसी की जगह कैन आई राइट u प्लस at द होल स्क्वायर upon r is equal to tangential acceleration. This is also tangential only. Hello, because particle velocity is along the tangent only, and tangential acceleration continuously changes that velocity. Hello, yes or यस no? सर. After the motion begins मतलब initial velocity zero लेना है, तो zero ले लिया मैंने इसको. ये हो जाएगा at into t the whole square into r is equal to at. So this will be written as at square into t square is equal to at by r. ये तो कैंसिल हो गया. So t square will become r by at. So t will become r by at का रूट. बोलो भाई. So t will become equal to r. r कितना है? 20 है by 5 raised to half. ठीक है, तो ये हो गया 4 का रूट 2 सेकेंड्स. हेलो बोलो, करेक्ट है क्या? यस सर. ठीक है, तो ऐसी चीजें सॉल्व करनी है. देखो बार बार मैं ये प्रूव नहीं करूंगा. अभी हमने नॉन यूसीएम में प्रूव कर दिया कि हम लोग वी इज यू प्लस एटी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्चुअली इस्तेमाल करना था ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, बट उसी से मैंने प्रूव किया कि हम लोग वी इज यू प्लस एटी लीनियर मोशन वाला इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो व्हेनेवर आई सी दिस वी इन नॉन यूसीएम आई कैन यूज यू प्लस एटी. हेलो, ठीक है ना? गेटिंग इट? ठीक है, चलो भाई एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. I'll come to question number 7, which is again very important question. I'm not going fast ना बेटा. हेलो, am I going fast or what? No ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, ठीक है. यस सर. So this is a ring of mass 2 pi. एक रिंग है, अभी रिंग है, रिंग, not a thread. It is a ring of mass
2 pi kg, radius 0.25 meter, मतलब 1/4 of a meter, making 300 revolutions per minute is 16 will become 5 rps about an axis perpendicular to the plane, मतलब ऐसे घूम रहा है ओमेगा से. The tension developed in the ring. अच्छा आपको मालूम है कि there will be a tension which will be developed in the ring. अच्छा, what is tension का rule? How is it developed? In which direction is it developed? यार बोलो. Within the string, away from the body. बराबर है क्या? हेलो, रूल पढ़ाया था ना मैंने. तो यहां पर इसका तरीका आप लोग को देखना पड़ेगा. दिस इज अ गुड सम which is having a proof over here. तो हमको क्या करना है, इसका मेथड इंपॉर्टेंट है, मेथड को ध्यान रखें. हमको एक टुकड़ा लेना है छोटा सी. इस रिंग का एक छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया, स्मॉल एलिमेंट. कैन आई से टेंशन विल बी डायरेक्टेड टेंजेंशियली आउटवर्ड. ऐसे इसके लिए टेंशन ऐसे रहेगा ना, जनरली टेंशन ऐसे रहेगा. बोलो. ओके, अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन द स्ट्रिंग ना. हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो टुकड़ा है इसका मास पकड़ता हूँ डीएम. डीएम का तरीका आपको याद है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ. लेंथ कितना है पूरे रिंग का? 2 pi r into the length of the element. Let the length of the element be dx. हेलो हेलो, इसका Yes, लेंथ sir. कितना पकड़ा मैंने? ds पकड़ा. ये भी चलेगा क्या? ये सही लेकर रहा हूं मैं? हेलो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. यस और नो? ओके. नाउ आपको पता है ये तो घूम रहा है, थोड़ा मैं साइड में कर लेता हूँ उसको. ठीक है. अब कैन आई join this to the center? Can I say this is r and this angle is d theta? This will also be d theta. वो सही है, दोनों सेम है. Can we also say that ds is equal to कितना? r into 2d theta. हेलो हेलो. Yes, sir. ओके, तो ds की जगह मैं लिख सकता हूँ, सो dm क्या हो जाएगा? m by 2 pi r will become r into 2d theta. r और r, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मास into d theta. डू यू एग्री? हेलो, ये भी ठीक है, ये मिल गया हमको. ये मेथड है पूरा. ये एक्चुअली क्या बिट्स एंड पीसेस में भी आएगा. जैसे मैंने कहा, जब बुक 2 आ जाएगा तो ये हर सम में ऐसे ही करते हैं हम लोग. तो अभी फिलहाल आपको नया लगेगा ये, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट विद इन द सेकंड एंड द थर्ड बुक. अब हम लोग ये टेंशन को तोड़ते हैं. कैन आई से दिस इज डी थीटा? इफ आई मेक अ स्ट्रेट लाइन, बेटा दिस विल आल्सो बी डी थीटा. व्हाई सर? भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम. हेलो, हाँ ना बोलो. अरे यार Yes, ये sir. इंपॉर्टेंट है. देखो ना, टेंजेंट और सीधा लाइन के बीच में डी थीटा, और नीचे रेडियस और वर्टिकल लाइन के बीच में डी थीटा, तो हुआ ना डी थीटा. अच्छा, कैन आई स्प्लिट द टी इनटू 2 पार्ट्स? तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस डी थीटा. ये भी हो जाएगा टी कॉस डी थीटा. एंड कैन आई से वर्टिकली इनवर्ड्स यहां पर जो 2 आएगा, दैट विल बी व्हाट सर? क्या हो जाएगा यार? इसका टी साइन डी थीटा और इसका भी टी साइन, so will become 2t sin d theta. Can I say this component will cancel this component, but this component is providing what sir? Hello, Centripetal force. ये समझा गया मेथड क्या कर रहा हूं मैं यार? ये दोनों कैंसिल कर देंगे, और ये जो वर्टिकली सॉरी रेडियली इनवर्ट्स है, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि गोल घूम रहा है, गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूरी है.
Can I say 2t sine theta d theta should provide centripetal force? 2t sine theta d theta, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या? m ओमेगा स्क्वायर r, बट मास इस एलिमेंट का मास नहीं है, इसका मास है dm ओमेगा स्क्वायर r. Can I write this as 2t sin theta d theta? मास ऑफ द एलिमेंट हमने निकाल लिया, m by pi into d theta into omega square r. But I know that this theta is very small. So how sine theta d theta? Sin It should be sine d theta. sin d theta, sorry, हाँ ये wrong हो गया ना. क्या हो गया? सही है आपकी बात, डी थीटा, सॉरी, बराबर है ना, करेक्ट है, अभी सही है बेटा. ओके, अब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे? डी थीटा इज वेरी स्मॉल. अरे भाई बोलो यस और नो. कैन आई से साइन डी थीटा विल बी इक्वल टू डी थीटा, डी थीटा इज इन यार बोलो ना, रेडियन. तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा बाबा? क्या हो जाएगा? टेल मी फास्ट. 2t sin d theta is d theta, m by pi, d theta omega square r. ये cancel, ये cancel. So t is going to become m omega square r by 2 pi. This is the tension in the whom, sir? क्या यार? हेलो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. हेलो, डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. ये उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करके जाना है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. यू डोंट हैव टाइम ओवर देयर टू डिराइव एंड डू ऑल दिस थिंग्स. डिराइव मैंने आपके लिए कर दिया है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. इट इज जनरल m ओमेगा स्क्वायर r by 2 pi. अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं. सो बी e will become m omega square, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 pi n the whole square r, 2 pi n the whole square r by 2 pi. ओके, उसको अगर लिखने जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? m 2 pi n square r. m कितना है? 2 pi है, into 2 pi. n is pi का स्क्वायर 25 into r is 1/4. ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया. 25 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज 10 ना, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है. ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 250. हेलो हेलो. Yes, sir. तो हमको ये याद करके जाना है, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r बाय. टेंशन इन द थ्रेड नहीं है, टेंशन इन द रिजिड बॉडी, दैट इज अ रिंग. ओके, so this is how we prove the sum for this thing. I hope you all have understood this thing. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब हम लोग आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं. We'll come to question number 12. A simple pendulum of length L and a bob of mass m is displaced from its equilibrium position to a position P, so that height of P above O is h.
So there was an equilibrium position O, and it was displaced to a point P. The height above ONA P is h. ठीक है, ये भी ठीक है. It is then released. What is the tension in the string when the bob passes through the equilibrium position O? मतलब ये initial position है और ये final है, और आपको पूछ रहा है कि भाई tension in the string when it passes through the equilibrium position. अच्छा, सबसे पहले मुझे आप बताओ ये V कितना रहेगा इसका, जल्दी बोलो. हेलो, प्लीज टेल मी, ये V कितना रहेगा? You know it, right? It's given as V. It's given as V. नहीं, H के टर्म्स में कितना रहेगा V? हेलो, V in terms of H कितना रहेगा? √2GH ना? Yes, sir. Hello. Because if you look at the answers ना बेटा, it is not in terms of, it is in terms of V दिया है क्या? हाँ, एक ही टर्म दिया है. H के टर्म में ये आंसर है, ठीक है? ओके. नाउ अगर हम यही इधर बैलेंस करें, ये तो T है. Can I say this is mg? And centrifugal force अगर हम लगाने जाते हैं तो this is mv²/r. जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तो आपको F net 0 कर देना है. That means up is equal to down. So T will become equal to mg plus mv²/r. Hello, hello, yes or no? अरे भाई yes or no, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो V की जगह क्या पुट करेंगे? तो T at the bottommost point will become mg plus m 2gh by r. mg कॉमन निकाल लेते हैं, 1 plus 2h by r, बट r को l लिख सकता हूं मैं, लेंथ है. तो mg 1 plus 2h by l. Do you agree? Hello, yes or no? अच्छा, ए वाला भी मैच कर रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, इधर तो ए वाला भी मैच कर रहा है, तो ये भी सही रहेगा ना फिर. यहाँ पर एक्चुअली दो आंसर्स है, ए वाला भी मैच कर रहा है, देख सकते हो आप लोग. क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग. 16. सब सिंपल टाइम पास वाले क्वेश्चंस है, प्लीज कंप्लीट इट. 16th is good question. We had done it last time, right? हेलो, याद है आप लोग को? कॉन्वेक्स ब्रिज एंड कॉनकेव ब्रिज याद आ रहा है? हेलो, Yes, sir. क्या बताया था मैंने आपको? चलो कर लेते हैं ना फिर से रिवीजन. ये है बॉडी वगैरह, नॉर्मल रिएक्शन mg mv²/r. नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन is mg plus mv²/r. एंड अगर कॉन्वेक्स रहेगा तो mg नॉर्मल रिएक्शन mv²/r. नॉर्मल रिएक्शन यहां पर हो जाएगा mg minus mv²/r.
Yes, we had done it last time. अच्छा, फ्लैट सरफेस रहेगा तो n will become ng. Okay. No. तो कह रहा है 4 बॉडीज प्लेस्ड है इधर, एक बॉडी इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है. किसका नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा? C and D. सी एंड डी. ओके, सी एंड डी का नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा. फिर किसका होगा? A. फिर ए का होगा. ओके, एंड देन सबसे कम किसका होगा? D. बी का होगा. इतना तो हमको पता है. तो आई नॉर्मल रिएक्शन एट C I'll write, then I'll write D, then I'll write A, and then I'll write ऐसे. ये तो सही है, इतना पार्ट सही है. डू यू एग्री विथ मी? हेलो, अरे हाँ ना बोलो बेटा, सही तो है. Yes, sir. अब C और D में प्रॉब्लम है. C और D कौन से सरफेसेस है? कौन केव है, कौन वेक्स है? C और D. Cave. ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. अच्छा, C और D में से रेडियस सबसे ज्यादा किसका है? रेडियस ज्यादा किसका है? देखो इसका रेडियस है ना, ये C वाला तो ऐसे एकदम C वाला इतना ही है, और ये ऐसे खुला हुआ है ना. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो. Yes, sir. तो कैन आई से रेडियस ऑफ D इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ C? तो अगर जिसका रेडियस बड़ा होता है, न्यूमरेटर कम हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा. तो जिसका रेडियस बड़ा रहेगा उसका नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है? हेलो, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा? Come. कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, राइट. तो ये D कम है. डू यू अग्री विथ मी? ये सेम कॉन्सेप्ट जो था लास्ट टाइम मैंने सिनॉप्सिस के बेसिस पर आपको पढ़ा दिया था. जैसे मैंने कहा कि सिनॉप्सिस अगर आपको आता है अच्छी तरीके से, तो यू विल गेट इट. नो बिग डील अबाउट दैट थिंग, यू विल गेट इट ओनली. ओके. क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है, तो केयरफुली है. A particle moves in a circular path of radius r with angular speed omega, which is a minus beta. ये वेरिएबल है. The magnitude of acceleration after time. So net acceleration they are asking you after a time of 2a by b. ठीक है भाई. अच्छा, can I say omega is a minus bt? Alpha will become d omega by dt because it is non-UCM. It will become minus b. बोलो. हेलो, Yes, sir. सही है ना? ये तो ठीक सही है. अच्छा, can anyone tell me what will be the tangential acceleration? R alpha. That is r into minus b, because alpha is minus b. ये tangential acceleration मिल. जब actually it is a retardation at this instant of time. अच्छा, can anyone tell me what is the centripetal acceleration का फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर. सही है ना? हेलो, सिंपल बात कर रहा हूँ यार. हेलो. Yes, sir. अच्छा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन से समय पर मांगता है आपको? ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा का फंक्शन तो a minus bt है into square into r, but I don't need it at any instant of time. I need at this time, so I'll put this t over here. So centripetal acceleration will become a minus b into 2a by b square into r. हेलो, क्या मैं सही कर रहा हूँ यार? हेलो, getting it or not?
So a minus 2a is a square into r. Can I say what is the net acceleration? वही चीज बार 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 AT is a square r, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a4r square. This is ACP and ET रहेगा RB, तो r square b square. हेलो, r बाहर निकल गया, it will become a4 plus r square b square. हेलो, अरे yes or no? Yes, sir. ये है. So once you understand how to deal with circular motion, आपको एकदम easy तरीके से circular motion समझ में आ जाएगा. And we'll finish off within this week only. Next week say we can start with our second book. So please collect all your books this week only. Mechanics 2 हम लोग start कर देंगे. ठीक है. Question number 22 पर आता है, which is another proof sum. As I told you, synopsis based questions है. Okay, this is also a very nice question. 20. I'll just stop over here and do the 20th sum. This was one of the difficult questions which were asked in the MST CET. Okay. MST CET में ऐसे सवाल एक बार आ गया था. तो most of the people couldn't do this question. देख तो क्या होता है. A toy car is tied to the end of an unstretched string of length A. Can anyone tell me how much is the unstretched length? How much is the natural length of the string? Hello. अरे भाई, how much is the natural length of the string? A है ना? A. देखो वहां ध्यान से पढ़ो बेटा. When revolve moving in a horizontal circle of radius 2a. Can I say एक टॉय की कार है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग बनाता हूँ, चलेगा ना? नेचुरल लेंथ इसका a था, इस वाज इसका नेचुरल लेंथ. अब क्या हो रहा है, इसको हम लोग घुमा रहे हैं इन अ रेडियस 2a. ये सेंटर है, इसको घुमा रहा हूं मैं इन अ रेडियस 2a. ये सपोज एक टॉप व्यू है, हम कैसे करके इसको घुमा रहे हैं इन अ रेडियस ऑफ 2a. कैन एनीवन टेल मी who will provide the necessary centripetal force? चलो हेल्प करो मेरे को. Who will provide the necessary centripetal force? The restoring force. And what is the formula for restoring force? F is equal to kx. Kx. अच्छा, can anyone tell me ये radius 2 है 2a, natural length था a, so how much is the extension in the string? अरे भाई कितना A. खिंचाव आ गया, a. हाँ ये important है, तो can I say x1 is a? Okay, and it takes a time period of t. कितना टाइम पीरियड है, इसको टाइम पीरियड कितना लगता है, t लगता है, बराबर है क्या? दिस इज योर फर्स्ट केस, केस 1. The toy car is speeded up until it moves in a horizontal circle of radius 3a. तो केस 2 में क्या हो रहा है, फिर से वही आ गया, स्पीड अप हो गया, रेडियस हो गया 3a. Can anyone tell me how much is the extension? बाबा बोलो. 2a. 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 And time period रहेगा t dash. वो t लिखा है उधर, t dash होना चाहिए, टाइम पीरियड इज t dash. ओके, एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन t एंड t dash. क्वेश्चन समझा आप लोग को? हेलो, क्वेश्चन समझा क्या? ओके ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखो. Can I say kx is centripetal force? Centripetal force is m omega square r. Kx is m omega square. Omega को लिख सकते हैं 2 pi by t the whole square into r. Can I say k is a constant, m is a constant? Hello, 2 pi is a constant. Yes or no?
अरे भाई ठीक है ना, ये भी कांस्टेंट है, तो कहना से ये टी स्क्वायर उधर गया, टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर बाई एक्स। हाँ ना बोलो, Yes, sir. अब मिल गया, अब काम हो गया। So can I say T1 upon T2 the whole square will become R1 by R2 into T1 is T, T2 is T dash, R1 is 2a, R2 is 3a, radius, huh? X2 is 2a, X1 is a। भाई मैं सही लिख रहा हूँ? हेलो हेलो, am I writing correct? बाबा ये a कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/3, so T dash is gonna become root 3/2 T ना। हेलो So अरे I भाई do not understand what is X. you did not understand what is X. Do you know what is X called as, beta? Yeah. What is it called It's as? distance. No, no. Yeah. Can Spring my KX, no? no. Spring. Can anyone tell me how much is X stand for? What does X stand for? Extension or compression. It is extension. देखो नेचुरल लेंथ कितना था बेटा स्टार्ट में? A. A. A था। अब स्प्रिंग कितना खींचा गया, कौन से रेडियस 2A. में घूम रहा है? 2a। तो हाउ मच इज द खिंचाव A और द amount, A? 2A minus A. हाँ। एंड सेकेंड केस में कितने रेडियस में घूम रहा है वो? 3a में। 3A. और 3A नेचुरल लेंथ minus उसका A. A है, तो ये हो जाएगा 2a। समझा गया? Yes, sir. So X stands for extension. Extension is final length minus initial length. बाबा सही है? हेलो, I hope you all Yes, have sir. understood this, हाँ? कुछ भी सवाल हो तो पूछा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, but you should know. Sir, how did K and M get cancelled? Can you explain again, sir? K तो वही स्प्रिंग है ना। हेलो, स्प्रिंग Yes. तो एक ही है, कैंसिल नहीं किया बेटा। These things are constant in this formula. कैंसिल वैंसिल नहीं किया मैंने कुछ। Ratio. Okay, sir. रेशियो, हाँ रेशियो मेथड। Okay. K is the same for both of them and mass is also the same ना, ये mass भी same है and ये K भी तो same है दोनों केस में। हेलो, तो रेशियो के लिए हमने ऐसे किया। यस, ओके। चलो बाबा, एक प्रूफ सिखाना है, just be with me. I'll explain the proof so that you all can understand what's happening. ध्यान देना। So this is question, I think question number 23 है। एक मिनट, हाँ ये वाला। अब ये ध्यान देना, ये प्रूफ है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 512 ऑफ योर डीसी पांडे। प्रूफ जैसे मैंने कहा याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कंपैरेटिवली। आपको चाहिए तो एक शॉर्टकट भी मैं दे सकता हूं सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, बट पहले प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। सपोज देयर इज अ बिग स्फीयर over which a block is resting. Okay. अब क्या हो रहा है, आपको पूछ रहा है कि एक पॉइंट ऐसे आएगा where it is going to lose contact with the floor. Hello, you're giving it an initial velocity u, ये एक पॉइंट ऐसे आएगा where it will leave the circle. Hello, are you getting it? Question समझा? Yes, sir. एक पॉइंट ऐसे आएगा where it will leave the circle, it will leave the circle, it will leave the sphere. So this is that point where it is going to leave the sphere. ठीक है? अब मुझे एक बात आप बता सकते हो कि यहां पर क्या मैं कह सकता हूं ये mg है?
और ये हमने थीटा पकड़ा, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस पॉइंट पे। यानी इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? ये mg है ना, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? हेलो यार बोलो भाई, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? cos. सही कर रहा हूं ना मैं? हेलो, जब उसने सर्कल छोड़ा तो उधर मैंने बैलेंस किया कि n प्लस mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा। हेलो, यस और नो? ये समझा आपको? Yes, sir. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच विल बी दिस v? v का फॉर्मूला क्या है सर्कुलर मोशन में? क्या मैं काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकता हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो क्या कोई बता सकता है कितना हाइट वो नीचे गिरा? बोलो यार, बोलो कितना रहेगा? कितनी बार सिखा चुका हूं ये? क्या होता है ये? R into 1 minus cos theta. r1 माइनस cos थीटा। डू यू एग्री विथ मी? हेलो, Yes, r sir. माइनस r cos थीटा ना यार, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना आप लोग को तो। हेलो, यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो कैन आई से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh? ये नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगा घटेगा? नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगा घटेगा? कम ऑन मैन टेल बढ़ेगा. मी। बढ़ेगा तो प्लस लिखा है मैंने, ऊपर जाते समय माइनस आएगा। हेलो, इधर आप काइनेमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? यू नो वी हैव डन इट प्रीवियसली ओनली। ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से हम लोगों ने ये निकाला। या तो अगर इसको और निकालना है मैं और प्रूव करता हूँ। विच एनर्जी इज चेंजिंग टू विच एनर्जी? चलो यार बोलो। Potential to kinetic. या पोटेंशियल एनर्जी टू, इनिशियल पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है। दिस इज इनिशियल एंड फाइनली पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है। यस और नो? हेलो भाई, करेक्ट है ना? हेलो, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? कितना रहेगा यार? फ्रॉम द बॉटम कितना रहेगा पोटेंशियल एनर्जी? चलो प्रूफ करके बताता हूं मैं। फ्रॉम द बॉटम पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा इसका? 2 mgr. mg2r, बहुत सही है। काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mu स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन क्या रहेगा यार बोलो? mgr प्लस mg, क्या भाई क्या हो जाएगा? mgr cos थीटा ना? हेलो, डू यू एग्री? Yes, sir. थोड़ा सी कोऑपरेट करो। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mv स्क्वायर। डू यू एग्री विथ मी? इधर से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट द सेम थिंग, दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, बट h की जगह r 1 माइनस cos थीटा। हेलो हेलो, इतना स्पून फीडिंग अच्छा नहीं है। करेक्ट है क्या? हेलो। Yes, sir. हम्म। अब क्या मैं कह सकता हूं इसने सर्कल छोड़ दिया इस पॉइंट पे, इट लीव्स कांटेक्ट। लीव्स कांटेक्ट का क्या मतलब है? टेक्निकली लीव्स कांटेक्ट का क्या मतलब है यार बोलो? N is 0. n इज जीरो। तो कहना इसे जब n जीरो डाल देंगे, इधर n जीरो डाल देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स mg cos थीटा। हेलो, बनेगा कि नहीं बनेगा यार? हेलो Yes, sir. बोलो। ये बन जाएगा। अच्छा, v की जगह क्या पुट करना है? ये पुट करना है m u स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा बाय r। यस और नो? इज इक्वल टू mg cos थीटा।
हेलो हेलो हेलो, आना बोलो यार। Yes, Yes, sir. sir. अब आप ओके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, so when we solve this, you will get cos theta is equal to, ये मैंने निकाला है सॉल्व करके, u square by 3gr plus 2/3. This is the standard result. हेलो यार बोलो, करेक्ट है क्या? हेलो, क्लियर है? इसको मैंने Yes, sir. सॉल्व करके इक्वेशन निकाला है पूरा, तो आपको चाहिए तो ये सब रिजल्ट तो ठीक है, ये चीज याद करना है। cos theta is u square by 3gr plus 2/3. cos theta is u square by 3gr plus 2/3. ओके, अब मेरी बात सुनो, अब I'll rub this. Is it okay? Now come to the main question. Baba, hello. Should I come to the main question? Yes, sir. अब मैं यहाँ पर इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा, हम लोग मेन रिजल्ट पर आते हैं सीधा। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख लेता हूँ। cos theta is u square by 3gr plus 2/3. कुछ चीजें क्या शॉर्ट ट्रिक के तौर पर याद हो जाएगी तो बहुत हेल्प करेगा। ओके, नो हम लोग फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बॉडी इधर था, एक पॉइंट ऐसे आई वेयर इट विल स्लाइड। ओके, एंड दिस इज द हाइट h फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम। दिस इज लूजिंग कांटेक्ट, मतलब इसका n0। कैन आई से दिस एंगल इज थीटा? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. A small body slides without friction. अच्छा, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या आपको? Have they given the value of u? नहीं, तो u को we'll take just tending up to 0. हेलो, अरे यार u दिया रहता, आपने इतने से धक्का मारा तो दिया रहता, अभी कुछ नहीं दिया, जस्ट टेंडिंग टू स्लाइड डाउन, मतलब क्या u का वैल्यू टेंडिंग अप टू 0 है, मतलब लिटिल ग्रेटर देन 0 है। सही है क्या? हेलो, तो cos थीटा u तो 0 हो गया, तो ये बन गया 2/3। अरे बना के नहीं भाई, हेलो, Yes, sir. 2/3 हो गया। हमको ये देखो, ये थीटा है ना, करेक्ट है ये, है ना? ये हाइट पूछा है, दिस हाइट इज आस्किंग, and we know that what is cos theta from here? Come on, please tell me what is cos theta from here? अरे भाई बोलो। H by R. h by r ना, ये r है ना भाई, so h by r will be cos theta, which is 2/3. So h will become 2r/3. हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपने याद कर लिया, सी यू विल नॉट हैव द टाइम टू प्रूव एंड एवरीथिंग। थोड़ा मेहनत करके आपको ट्रिक्स, वो फॉर्मूला शीट जो बनाया है रहेगा आपने, उसमें ये सब फॉर्मूला सबको ऐड करना ही पड़ेगा, एंड एंड मोमेंट पे रिवाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू विल टेंड टू फॉरगेट। ओके, सो इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, एंड विल हेल्प यू सेव टाइम ऑल्सो। अब ये फॉर्मूला इतना ब्यूटीफुल है कि इसमें कोई भी यू आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, एंड कॉस थीटा एक बार मिल गया तो यू कैन डू ज्योमेट्री एंड यू कैन अप्लाई द आंसर। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. rather than applying everything different cases and everything, ये फॉर्मूला आप लोग याद करें। Okay, now we,
come back to our other questions. (26) पर आता है, ये भी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, नहीं आएगा तो पूछ लेना। 26 पर I'll do, everything is not possible। अच्छा ये कर लेते चलो यार, 24 वाला, do it, see what is given। A circular disk is rotating about an axis O with uniform angular velocity omega. The magnitude of relative velocity of point A with respect to B. Okay, क्या बनता है हमको? Delta V. Hello. Of point A with respect to B. सही है ना? Hello. Sir. क्या हो जाएगा? VA bar minus VB bar. Do you agree? Yes, sir. इसको क्या मैग्नीट्यूड वाइज में ऐसे लिख सकता हूँ? क्या हो जाएगा जब दोनों को माइनस करते हैं तो स्केलर फॉर्मेट, क्या पैरेललोग्राम फॉर्मेट क्या होता है? अरे भाई, यस और नो? V. VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos थीटा। भाई ये आता है क्या? Yes, sir. हेलो, क्या आना चाहिए? अच्छा दोनों का V सेम है, अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब अगर इधर का V है तो इधर का भी V है। अरे यार बोलो ना, अगर दोनों का डायरेक्शन अलग है तो कैन आई पुट मैग्नीट्यूड ओवर हियर, दैट इज V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 VV cos थीटा। हेलो, this will be written as under root 2V square 1 minus cos theta। What is 1 minus cos theta? Trigonometry man। 2 sin square theta by 2। तो ये रूट 2V तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2 sin square theta by 2 रेज टू हाफ। ये रूट 2, ये रूट 2 2V sin theta by 2। हेलो हेलो, but what is V equal to R omega ना? हेलो, Yes, sir. ये चीज भी आप लोग याद कर सकते हो सीधा, ये एक्चुअली एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हम लोग नीट वालों को याद करने देते हैं सीधा। तो आप लोग जब दोनों का डायरेक्शन अलग रहता है तो V डेल्टा V विल ऑलवेज बी 2V sin थीटा by 2, 2V sin थीटा by 2, 2V sin थीटा by 2। जितना स्ट्रॉन्ग सिनॉप्सिस बनाएंगे उतना चैप्टर इजी हो जाएगा। These are again the standard results which we need। Okay, I'll come to question number 30। ये भी कोनिकल पेंडुलम है, ये भी ठीक है। अच्छा ये कर लेते हैं, चलो 26 वाला। A particle of mass m describes a circle of radius r. The centripetal acceleration is 4 by r square। Momentum of the particle। चलो फॉर्मूला बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल V square एक्सेलरेशन by इज R. v स्क्वायर बाय r। r और r तो कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज गोना बिकम 4 by r, बराबर क्या? v इज गोना बिकम 2 by root r। एक बार v मिल गया, व्हाट इज मोमेंटम स्टैंड फॉर? MV. m into v की जगह 2 by root r, 2m by root r is the answer। गेटिंग है ना? ठीक है, ये तो इजी है। ओके, 31 पर आता है। 31 लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आप लोग को, तो अच्छे वाले सम्स है यार। You do it, find it। So particle suspended by a light inextensible thread projected horizontally from the lowest position। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक पार्टिकल है which is projected from here। कितना स्पीड है इसका? रूट क्या है भाई?
अरे भाई हेलो, 7/2 है ना, Yes, sir. 7/2 को 3.5 GL लिख सकते हो। क्या करेगा ये, कोई बता सकता है क्या करने वाला है ये? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट विल E will become 0. P विल बिकम 0, सही है ना? हेलो यार, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इट इज लेस देन √5 GL ना? हेलो, एंड ग्रेटर देन √2 GL ना? कैन आई से ओवर हियर it will lose contact at this moment, T will become 0, but V will be there na? Hello, yes or no? Yes, तो ये फॉर्मूला वाला मैं, ये हाइट का मैंने दिया था लास्ट टाइम शॉर्टकट। हाइट क्या था? U square plus GR by 3G. परफेक्ट परफेक्ट, यही काम है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको आ जाएगा यार। अच्छा, U का वैल्यू डाल दो इसमें, U का वैल्यू डाल दो। ये 3.5 GL हो गया ना, 3.5 है ना, ये वैल्यू है ना, ये तो सब है। तो ये हो जाएगा 3.5 GL प्लस GR ओनली बाई 3G। ये हो जाएगा 4.5 GL बाई 3G, दैट इज कितना होता है, कितना होता है भाई? 1.5 L. 1.5 L। अब आपको मालूम है ये तो L है, अगर ये 1.5 L है, इसका मतलब आपको एकदम आराम से मिल गया। ये L है ना, इतना तो पता है। तो ये वाला जो हाइट रहेगा ना, ये कितना रहेगा? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब इसी का डायग्राम मैं इधर फिर से बना दो। कैन आई से दिस इज 0.5 L, दिस इज द स्ट्रिंग। कैन आई से दिस लेंथ इज L? तो बता सकता है ये एंगल कितना है? एकदम इजी है। कितना एंगल है यार? 30. 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो टोटल डिग्री कितना हुआ? 120। हेलो यार बोलो, Yes, sir. करेक्ट है ना? तो ये देखो कितना आसानी से सम सॉल्व हो गया अगर हमको ये आता है तो। वरना आपको सब इक्वेशन लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, टेंशन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इट इज बेटर टू लर्न इन दिस चैप्टर। एवरी चैप्टर इज नॉट लाइक दिस। ये चैप्टर का खासियत ये है कि आपको अगर सिनॉप्सिस अच्छी तरीके से आता है तो यू विल गेट द चैप्टर। ओके, एवरी चैप्टर इज नॉट लाइक दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये conical pendulum है, which I had given you synopsis last time, so it can be done. Question number 33, last question. A particle starts traveling in a circle with constant tangential acceleration. ठीक है, 80 है उसके पास, मतलब पार्टिकल जा रहा है सर्कल में, at any instant of time there is 80 tangential acceleration. What is the formula 80 का? R alpha. The angle between the velocity vector and the acceleration vector at the moment when the particle completes half the circular track. हाफ द सर्कुलर ट्रैक मतलब सपोज ये T0 है, हाफ द सर्कुलर ट्रैक मतलब इधर आ गया ना। हेलो हेलो, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर रहेगा, सो कैन आई से नेट एक्सेलरेशन इधर किधर होगा? I want to find the angle between the velocity vector. I know that velocity vector is here. हेलो, ये भी है ना, और ए नेट के बीच में एंगल थीटा मांग रहा है। हेलो, हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. तो वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन नेट वेक्टर के बीच में जो एंगल है at time t when he is completing half the revolution. ठीक है भाई? Okay, now look carefully. Constant tangential acceleration है मतलब
80 is constant, मतलब ये 80 का 80 पकड़ लेते हैं, R अल्फा में जाते ही नहीं हम लोग. We'll consider this 80 only. 80 is constant है ना ये, मतलब हर मोमेंट पर 80 will become constant. This is constant. Okay, so 80 is 80 only, that is constant. बराबर है क्या? इसको ठीक है. Can I say what is the formula for centripetal acceleration? Hello, V square by R. v square by r. अच्छा, v को मैं लिख सकता हूँ u square plus 2as. हाँ यार, याद है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. हेलो हेलो, Yes, sir. ACP हो जाएगा. u तो 0 पकड़ता है because we are considering it as rest. We need 2as. This a is 80 into s. Can anyone tell me how much is the distance covered? Displacement नहीं लेना है इधर, because particle का direction of velocity and acceleration is in the same direction. So we'll consider this as s. That is distance covered will become pi r. Do you agree with me? Yes, Hello? sir. Because it is actually linearly going along that path, na? At every instant of time. Pi r. ये r और r cancel हो गया. Centripetal acceleration होता है 280 into pi. बराबर है? हेलो 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 हेलो, yes or Yes, no? sir. Now ये भी हो गया. ठीक है. Now आप मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशंस हैं, ध्यान देना अभी सब लोग इधर, मेरी बात सुनेंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा. कैन यू कैलकुलेट tan थीटा फ्रॉम हियर? देखो Yes. v का डायरेक्शन और 80 का डायरेक्शन सेम है. v का डायरेक्शन और 80 का डायरेक्शन सेम है. सो कैन आई से tan थीटा विल बिकम ACP by 80. इतना सही है? हेलो Yes, sir. भाई, v का डायरेक्शन और 80 का डायरेक्शन वही है ना, तो अगर जो एंगल इसके बीच में रहेगा वही तो रहेगा, जो एंगल इधर रहेगा वही द एंगल 80 और उसके बीच में तो रहेगा, सेम ही तो है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ACP by 80 फ्रॉम हियर? ACP by 80 फ्रॉम हियर क्या है? 2 pi. 2 pi. So theta will become tan inverse of 2 pi. करेक्ट है क्या? हेलो. Yes, sir. Tan inverse of 2 pi. So this is how you all do circular motion. 2 more lectures are there, so we need not worry. You all practice and कुछ भी doubt रहेगा. Generally I have covered everything in the synopsis. Generally एक दो सब में doubt रहेगा, उससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं. I'll be starting with subjective on Wednesday, and then Friday को हम लोग और sums करेंगे ताकि आपको और idea आ जाए. ठीक है ना? चलो. So you have to make synopsis of this chapter properly. Rather than solving each and every sum, if you make the synopsis properly, आपको अपने आप chapter आ जाएगा. ठीक है? चलो, we'll meet on Wednesday. Thank you very much. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. And